Another concept is there. One concept is there. This is called coupling and repulsion. Coupling and repulsion to favor linkage and crossing over concept. Okay, now we discuss about the linkage and crossing over. Hey, so to understand that things better, one more concept is there, that is a coupling and repulsion given by a scientist Batson. किसने दिया था आपको? A Batson ने. समझेंगे what Batson did. But a coupling and repulsion, that is the basic raw material for linkage. पहली चीज, coupling and repulsion, this is basic raw material for linkage. Okay, one by one concept समझेंगे. What Batson did, Batson make a experiment. ठीक, एक experiment किया उन्होंने, चेक किया कि भाई how characters are showing linkage and crossing over. उसको किया. Batson selected sweet pea. Batson selected 2 plants of sweet pea. What he did, one लिया उसने एक purple color flower with long pollen, make cross with a white color flower with short pollen. Purple color flower with the long pollen and white color flower with short pollen. ठीक है, इसका बड़ा F1 क्रॉस निकाला. In F1 all parents, जितने भी on F1 all offsprings came purple with long pollen. Purple with long pollen, so it is clear that purple and long color is dominant. It's okay. Hey, next what he did, now he make a test cross of it. यानी आप इसके recessive parents से cross करवाया white and short pollen. White and short pollen. So purple with long pollen, white with short pollen. In F1 all offsprings came purple with long pollen. ठीक, now he made a test cross of it. So in test cross, according to what आपके Mendel's, what is test cross का ratio क्या होना चाहिए था? Dihybrid test cross ratio should be 1:1:1:1:1. But instead of 1:1:1, surprisingly it came different. इससे डिवीजन हुआ, डिवीजन क्या आया? 7:1:1:7. It was surprisingly different. बोलिए ये क्या पंगा है? Ratio should come 1:1:1:1, but instead of it came 7:1:1:1, 7:1:1:7. ये रेशियो आया, मतलब और इस रेशियो में भी कौन कौन से कैसे ऑफस्प्रिंग्स आए? देखिए, फॉर F2 जनरेशन दीज आर द पेरेंट्स. फॉर F2 जनरेशन दीज आर द पेरेंट्स. देखेंगे इसमें हम. बेटा ये जो 7 आए, दे वर लाइक दिस, मीन्स कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल L स्मॉल l, पर्पल एंड लॉन्ग pollen. ठीक है जी. ये जो 1 आए, ए 7 इस पेरेंट्स की तरह है, ए वाला 7 इस पेरेंट्स की तरह है, यानी व्हाइट विद शॉर्ट pollen. व्हाइट विद शॉर्ट pollen, ये दोनों तो पेरेंटल तरह हो गए. और ये जो 2 आए आपके 1:1, दीज केम रिकॉम्बिनेंट्स. ये रिकॉम्बिनेंट्स की तरह बन के आए. कैसे आए आपके रिकॉम्बिनेंट्स? पर्पल विद शॉर्ट pollen, पर्पल विद शॉर्ट pollen. और ये कैसा आया? व्हाइट. एक आपका कैसा? व्हाइट विद लॉन्ग pollen. समझेंगे आप? मैंने कहा पर्पल विद लॉन्ग pollen, व्हाइट विद शॉर्ट pollen, तो ये तो पेरेंटल हो गए. देखो पेरेंटल है, तो आउट ऑफ 16, 7 + 7 यानी 14 पेरेंटल आए. एंड 2 रिकॉम्बिनेंट्स हो गए, पर्पल विद शॉर्ट pollen एंड व्हाइट विद लॉन्ग pollen. तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स केम फ्रॉम couples. मैक्सिमम कैरेक्टर्स केम फ्रॉम couples. तो इसको नाम दे दिया गया क्या? कपलिंग. इसको क्या नाम दिया? कपलिंग. बात क्लियर है? एक कपलिंग होती है इनके साथ. कपलिंग, द मैक्सिमम कैरेक्टर्स केम फ्रॉम couples, फ्रॉम पेरेंटल कैरेक्टर्स केम, नेम आया आपका कपलिंग. 7:1:1:7 इंस्टेड ऑफ 1:1:1:1. गेटिंग अ नॉट. इस कंसेप्ट को समझेंगे आफ्टर रिपल्सन. ओके, दोनों को कंपेयर करके समझाएंगे कि व्हाई दिस हैपनिंग. अप टू हियर इट्स ओके. इन चार्ट यू कैन सी बेटा, चार्ट में क्लियर आपको दिख ही रहा है कि हाउ दीस कैरेक्टर्स केम. क्लियर और नॉट? गेटिंग नॉट. अगर हम इसके परसेंट वाइज बात कर ले, एज इन द चार्ट ऑलरेडी शोन. ठीक बेटा, एक परसेंट हम देखें तो मैक्सिमम कैरेक्टर किसके आए? मैक्सिमम कैरेक्टर आपके आ गए पेरेंटल. मैक्सिमम कैरेक्टर कौन से आए? पेरेंटल. तो आप परसेंट वाइज देखें, 43.7% ए वाले पेरेंट्स, 43.7% ये आपके पेरेंटल्स हो गए. एंड 6.3% दिस वन एंड 6.3% दिस वन.
Okay, so recombinants, they are recombinants and they are parents. Clear or not? Up to here it's okay. Done. ठीक है. Now हम दूसरी बात कर लेते. Another experiment performed by आपके बैटसन. इसी में एक एक्सपेरिमेंट तो ये क्लियर हुआ. And it's shown coupling. As I told you before also, coupling means to say cis arrangement. ये cis और trans दोनों arrangement, coupling repulsion after I will explain again. ठीक है ना. इसी का दूसरा एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड. अप टू हियर इट्स ओके बेटा. ठीक है. इसी का मैं अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लूं, जरा उसको चेक करेंगे. क्या एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने. ठीक, एक कंडीशन तो आपको एक बिल्कुल क्लियर हुई है. इसी का दूसरा एक्सपेरिमेंट चेक करेगा. देखेंगे हम क्या करने जा रहे हैं. अभी मैंने बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर्स यहां से लिए, बोथ रेसेसिव कैरेक्टर्स यहां से लिए और इसको शो किया है. ठीक, इसी का मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं यहां पर. देखिए अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड, उसने लिया बेटा पर्पल कलर फ्लावर विद शॉर्ट पॉलिन क्रॉस विद व्हाइट कलर फ्लावर विद लॉन्ग पॉलिन. अप टू हियर इट्स ओके. ठीक, पर्पल कलर फ्लावर विद शॉर्ट पॉलिन एंड व्हाइट कलर फ्लावर विद लॉन्ग पॉलिन. इसको थोड़ा सा नीचे लिख ले रहा हूं. ठीक है, देखेंगे जरा. मैंने कहा पर्पल कलर फ्लावर विद शॉर्ट पॉलिन एंड व्हाइट कलर फ्लावर विद लॉन्ग पॉलिन. अब टू हियर इट्स ओके बेटा. इसकी F1 आया एंड F1 क्या आएगा आपका. ऑल F1 केम पर्पल कलर फ्लावर विद लॉन्ग पॉलिन. ये F1 है जस्ट लाइक दिस. बोथ आर सेम और नॉट. अब टू हियर तो ओके, बोथ आर सेम. ठीक है. ही मेड टेस्ट क्रॉस ऑफ इट. इसका क्या किया. टेस्ट क्रॉस मतलब स्मॉल p स्मॉल l इसी के होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस करवा दिया. होमोजाइगस रेसेसिव. ठीक, ये आया. सो इट्स अ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मींस टू से रेशियो शुड कम 1:1:1:1:1. ऐसा आना था कि नहीं. बट वंस अगेन सरप्राइजिंगली डिफरेंट. ठीक, इट वाज बिफोर हियर 7:1:1:7 और यहां देखो. सो इंस्टेड ऑफ 1:1:1:1 now this time ratio came 1:7:7:1. अब फिर ऐसा है. एक इसके अपोजिट आया. Here you can see maximum जो कैरेक्टर्स है वो रिकॉम्बिनेंट्स आए और फ्यू कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स. मींस इसके अपोजिट 6.3% जो रहे आपके थे. आपके चलो पहले इसके कैरेक्टर लिख दूं. अगर मैं देखूं बेटा यहां तो ये जो बनाया एक पेरेंटल आया कैसा. पर्पल कलर फ्लावर विद लॉन्ग पॉलिन लाइक दिस. ये जो बन आया बड़ा व्हाइट कलर फ्लावर विद शॉर्ट पॉलिन. व्हाइट कलर फ्लावर विद शॉर्ट पॉलिन. दीज आर द रिकॉम्बिनेंट्स. पर्पल कलर फ्लावर है विद शॉर्ट पॉलिन. पर्पल कलर फ्लावर विद शॉर्ट पॉलिन. और यहां पर आपका क्या हुआ बेटा. व्हाइट कलर फ्लावर विद लॉन्ग पॉलिन. व्हाइट कलर फ्लावर विद लॉन्ग पॉलिन. रेशियो कैसा आया लाइक दिस. पहले जैसा आया था उसके अपोजिट की मैं बात कर लूं. यहां जो रेशियो आया था आप देखें ए आपके थे 6.3%. 6.3 ए आए बेटा 6.3. अप टू हियर इट्स ओके. और इफ रिकॉम्बिनेंट्स नाउ दिस टाइम मोर आया आपके कितना 43.7%. 43.7%. अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे. इसको नाम दिया गया कपलिंग एंड दिस इज रिपल्सन. कपलिंग एंड रिपल्सन दोनों में डिफरेंस वाइज समझे. व्हाट आई टोल्ड इन केसेस ऑफ कपलिंग बेटा. कपलिंग और रिपल्सन में दोनों ही डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो लिए गए. सो इंस्टेड ऑफ 1:1:1:1 नाउ इन केसेस ऑफ कपलिंग जस्ट वी कैन सी मैक्सिमम कैरेक्टर्स केम फ्रॉम पेरेंट्स. Maximum character came from parents, while in cases of repulsion, maximum characters came from recombinants. Parental characters came very less. Okay? अब ऐसा हुआ क्यों? और what the concept is there? What the concept is there behind it? Okay? Just समझे. बेटा एक कंडीशंस ली मैंने कपलिंग में. कपलिंग का कंसेप्ट और इसके कंपेरिजन में आप थोड़े से कंपेयर करेंगे. In cases of coupling, what he told, when both dominant or recessive gene, when both dominant or recessive gene coming, okay, when both dominant recessive gene
came from the same parents. देखो दोनों डोमिनेंट एक पेरेंट से आ रहा है, दोनों रेसेसिव एक पेरेंट से आ रहा है. Then in F1 generation or in future generation in offspring, all they will be remain together. What I told you, when both dominant or recessive gene coming from the same parents, then they will be remain together in the inheritance process. ये पहले भी साथ थे, कैपिटल P कैपिटल L, और ये फ्यूचर में भी साथ है. Means to say these genes were present, these genes were tightly packed with each other, tightly packed. तो ये पहले भी साथ थे और ये अभी भी साथ है. Clear? When two genes dominant or recessive coming from the same parents, एक ही पेरेंट से दोनों डोमिनेंट आ रहा है और एक दूसरे पेरेंट से दोनों रेसेसिव आ रहा है, then in inheritance process they will be remain together. पहली चीज, ठीक है. इन केस ऑफ कपलिंग, आप कपलिंग के बाद इनके रिपल्सन देखेंगे. When both dominant or recessive genes, when one dominant gene coming from one parents while recessive, देखो, when both dominant or recessive gene, when both dominant and recessive gene coming from two different parents, means to say they were not together. देखो, one dominant here and one dominant is there. So when both dominant or recessive gene were separate from each other, were far distance before, they in inheritance process they will be remain separate. In inheritance process they will be remain separate. When both dominant, देखो, एक dominant यहाँ, एक dominant here, one recessive here, one recessive here. While in cases of here, बेटा, both dominant gene coming from one parent, both recessive coming from one parents. बात clear? Both were together. While in case of repulsion, where both dominant and recessive gene, okay, both dominant means to say one parents having one dominant, one recessive, one dominant, one recessive. When both dominant or recessive gene, they were apart from each other, they were, okay, not together before, then in inheritance process also they will be remain separate. ये बाद में भी separate रहेंगे. क्लियर? और यही हुआ. मैक्सिमम जो करेक्टर्स आए वो किसके आए? पेरेंटल ना आकर किसके आ गए? आपके रिकॉम्बिनेंट्स बने. देखो, पेरेंट ए वाले यहाँ पर कमा, ए वाले करेक्टर 6.3% है, पेरेंटल करेक्टर 6.3% है. मैक्सिमम करेक्टर्स कौन आए? आपके रिकॉम्बिनेंट्स. दिस इज रिपल्सन. दिस इज जस्ट लाइक ए अरेंज मैरिज एंड भाकर मैरिज. अरेंज मैरिज एंड भाकर मैरिज मतलब लव मैरिज. ठीक, समझेंगे दोनों कंसेप्ट. क्यों मैंने कहा? देखो, व्हाई दिस अरेंज मैरिज इज बेटर? बिकॉज हियर यू हैव सीन, देखिए, पेरेंट्स, अरेंज मैरिज की जो कंडीशन होती है कैसे होती है? पेरेंट्स जो होते हैं दे आर सर्चिंग द थिंग्स, दे आर सर्चिंग. वो घर पर जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि जो उन्हें बच्चा बच्ची पसंद है, क्या वो सेम कैरेक्टर उनके पापा मम्मी में भी है कि नहीं, दादा दादी में है कि नहीं, नाना नानी में है कि नहीं, क्या वो सेम कैरेक्टर उनके खानदान में है? अगर वो कैरेक्टर उनके खानदान में था, मतलब क्या है? वो कैरेक्टर लिंक है. तो इन फ्यूचर आल्सो पेरेंटल कैरेक्टर विल कम. तो फ्यूचर में भी पेरेंटल ही कैरेक्टर्स आएंगे. देखिए, सर उनका खुद का साइंस, ठीक, दे जस्ट वांट्स टू चेक, ठीक. इसलिए शादी वगैरह जो है, अरेंजमेंट जो अरेंज मैरिज हैं, दैट इज टेकिंग सम टाइम. बातें चीजें करते करते काम चलता है. घर पर आते हैं, देखा जा कि हो रही थी क्या चीज, कि हाँ भाई जो कैरेक्टर्स हमें पसंद है बच्चा बच्ची में, ठीक, बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं, उनमें जो कैरेक्टर पसंद है, दैट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन देयर पेरेंट्स और नॉट, उनके पेरेंट्स और नॉट, उनके चाचा चाची वगैरह में है कि नहीं, तो उनके खानदान में दैट कैरेक्टर्स आर नॉट देयर. इफ दीज कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट इन देयर फैमिली, देन ऑफ कोर्स दीज कैरेक्टर्स विल अपीयर इन फ्यूचर आल्सो. क्लियर और नॉट?